हाँ जी राजे BCA 2 ਅਤੇ MSc IT ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਫ ਥਿਊਰੀ ਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਅਤੇ ਥਿਊਰਮਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ ਗ੍ਰਾਫਸ ਦਾ। ਕੋਈ ਦੋ ਗ੍ਰਾਫ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਰਟੈਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਰਟੈਕਸ ਪਹਿਲੇ ਕੋਲ ਨੇ ਉਨੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਜਸ, ਜਿੰਨੇ ਐਜ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਨੇ ਉਨੇ ਹੀ ਐਜ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਐਨ ਇਕੁਅਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਰਟਿਸਿਸ ਵਿਦ ਗਿਵਨ ਡਿਗਰੀ। ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ 1 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਾ ਵਰਟੈਕਸ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਪਿਆ ਤਾਂ 1 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਾ ਦੂਜੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। 2 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵਰਟੈਕਸ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ 2 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਉਨੇ ਹੀ ਵਰਟੈਕਸ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। 3 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵਰਟੈਕਸ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ 3 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਉਨੇ ਹੀ ਵਰਟੈਕਸ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰੂਗੀ। ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 3 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ 1 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਹੋਊਗੀ ਕਿ 2 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 3 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ 1 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਗ੍ਰਾਫ ਹਰ ਪੱਖੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਟਰ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਆ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਟਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਗ੍ਰਾਫਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਹ ਸਿੰਬਲ ਵਰਤਦੇ ਆ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ ਗ੍ਰਾਫਸ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ ਗ੍ਰਾਫਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਦੋ ਗ੍ਰਾਫਸ ਨੇ, ਆਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਦੋ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੋ, ਆਹ 'ਚ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਜੀ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਕੁਅਰ ਟਾਈਪ ਜਿਹਦਾ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਜੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਰਟੈਕਸ ਗਿਣੀਏ, 1 2 3 4 5 ਵਰਟੈਕਸ ਨੇ ਇੱਧਰ, 1 2 3 4 5 ਵਰਟੈਕਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਰਟੈਕਸ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਜਸ ਦੀ। 1 2 3 4 5 ਅਤੇ 6 ਐਜ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, 1 2 3 4 5 ਅਤੇ 6 ਹੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਜਸ ਵੀ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਗਈ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਰਟਿਸਿਸ ਵਿਦ ਗਿਵਨ ਡਿਗਰੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ 1 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, 1 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਾ ਆ ਸੀ। 2 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ 2 ਆ, ਇੱਧਰ 2 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਆ ਸੀ 2 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਾ। 3 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ 3 ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ 3 ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ 3 ਆ। ਸੋ 3 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 3। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ 3 ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ 3 ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ 3 ਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੇ ਗ੍ਰਾਫ ਐਵਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਗ੍ਰਾਫਸ ਕੀ ਨੇ, ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ ਨੇ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ ਦੇ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ ਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਵਰਟੈਕਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 1 2 3 4 5 6। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 1 2 3 4 5 6 ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਰਟੈਕਸ ਹੋ ਗਏ। ਐਜਸ 1 2 3 4 ਅਤੇ 5 ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 1 2 3 4 ਅਤੇ 5 ਨੇ, ਐਜਸ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ 1 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਵਰਟੈਕਸ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, 1 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਾ ਆ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਆ ਸੀ, ਤੀਜਾ ਆ ਸੀ। 3 ਵਰਟੈਕਸ ਹੋ ਗਏ 1 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਆ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਆ ਸੀ, ਤੀਸਰਾ ਆ ਸੀ। 3 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਸੌਰੀ 1 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਹੁਣ 2 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਾ 1 ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਡਿਗਰੀ 2 ਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆ ਸੀ 2 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਆ ਸੀ 2 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਾ। 2 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਏ। 3 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ, ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ 3 ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ 1 2 3 3 ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀਏ, ਆ ਜਿਹੜਾ 3 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਾ ਵਰਟੈਕਸ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਪੈਂਡੈਂਟ ਵਰਟੈਕਸ ਨੇ। 3 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ 2 1 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ 3 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਾ ਵਰਟੈਕਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 1 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਸਿਰਫ 1 ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲੱਭ ਗਈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ 3 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਵਰਟੈਕਸ ਦੇ ਕੋਲੇ 2 ਸੀਗੇ 1 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਇੱਧਰ 3 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ these graphs are not isomorphic। ਏਦਾਂ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਪਾ ਕੇ ਲਾਈਨ ਜੀ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ, ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ।
हर एक पॉइंट ऑफ व्यू तो दोनों ग्राफ्स आपस दे विच सेम या बराबर नज़र आने चाहिए ने तां आइसोमॉर्फिक होणगे। उस तो बाद आ गया होम्योमॉर्फिक ग्राफ्स। ध्यान दो बोर्ड ते डेफिनेशन देखो होम्योमॉर्फिक ग्राफ्स दी की है। गिवन एनी ग्राफ जी ऑब्टेन्ड ए न्यू ग्राफ, मेन ग्राफ तो आपां नवां ग्राफ लाउणा बाय डिवाइडिंग एन एज विद एडिशनल वर्टिसेस। आपां ने एजेस नूं डिवाइड करके एजेस नूं तोड़ के उन्हां दे उत्ते नवे वर्टेक्स लगा के एक ग्राफ पता करना। जिवें हुण आ ग्राफ आ वाला ये प्लस का निशान जिहा, जे आपां इत्थे एक वर्टेक्स ला दईए एक इत्थे ला दईए इहदा मतलब की होऊगा। ध्यान नाल देखो ये ग्राफ सी तो पता किया गया, इहदा वड्डा सारा एज सी इहनूं तोड़ के दो एज बनाते एक वर्टेक्स लाता, इहदा एक वड्डा सारा एज सी इहनूं तोड़ के आ बनाता दो एक वर्टेक्स लाता। मतलब कि तुसीं एज डिवाइड करना, डिवाइड किवें होऊ एज एक एज दे दो पार्ट बना देने आ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ नवां वर्टेक्स ला के ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ग्राफ न्यू ग्राफ आ ਇਹ ਮੇਨ ग्राफ ਦਾ ਹੋਮਿਓਮੋਰਫਿਕ ग्राफ बन जाऊगा। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਹੋਰ ਲਾਤਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। we have to obtain, we have to find new graph from the old graph G by dividing the edge with the addition of vertex। edges ਨੂੰ divide ਕਰਕੇ vertex ਨੂੰ add ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ग्राफ ਤਿਆਰ करना, ਤਾਂ ਨਵਾਂ ग्राफ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਹੋਮਿਓਮੋਰਫਿਕ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਕ कह लो ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਹੋਮਿਓਮੋਰਫਿਕ ग्राफ्स। उस तो बाद आ गया जी सब ग्राफ। सब ग्राफ जिवें सब फैमिली हुंदी आ, एक वड्डी फैमिली रहिंदी आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ थोड़े जे मैंबर अलग होकर रहना शुरू कर दिंदे ने, चाहे उसी घर च एक अलग कमरे च रहन लग जाणगे। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ अलग होए ने मेन चों ही निकले ने, ਤਾਂ मेन फैमिली फैमिली आ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ निकल के अलग छोटी जी फैमिली बनी आ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ सब फैमिली कह ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ भी सब ग्राफ की होऊगा, मेन ग्राफ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ग्राफ ਸੀਗਾ मेन, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਐਜਸ ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਸਬ ਗ੍ਰਾਫ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰਲੇ ਰੱਖ ਲਓ ਆਹ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ, ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ V11 ਹੈ, ਇਹ V10 ਹੈ, ਆਹ V9 ਆ, V8 ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੀ V7, ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੀ V12। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਸਬ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਗਿਆ। सो मेन ग्राफ का कोई पार्ट विच इज आल्सो ए ग्राफ इज कॉल्ड सब ग्राफ ऑफ द मेन ग्राफ। ते मेन ग्राफ नूं की कहने हुंदे आ, सुपर ग्राफ। मेन नूं की कहांगे सुपर, उहदे विचों निकल के अलग बने हुए मैंबरां नूं की बोलदे ने सब। उस तो बाद फुल सब ग्राफ। हरेक सब ग्राफ अपने आप का फुल सब ग्राफ होंदा, सुपर ग्राफ होंदा। G माइनस V, G माइनस V का मतलब की है ग्राफ दे विचों कोई वर्टेक्स डिलीट करना। जदों आपां ग्राफ दे विचों कोई वर्टेक्स डिलीट करांगे, ध्यान नाल सुनो मेरी गल नूं, उहदे नाल जुड़े हुए एजेस भी डिलीट करांगे। जे ग्राफ चों कोई वर्टेक्स डिलीट कर रहे हैं तो उहदे नाल जुड़े हुए जिन्ने एज ने वह भी डिलीट करांगे। एक हुंदा कट वर्टेक्स। कट वर्टेक्स नूं आपां ब्रिज भी कह सकते हैं, ब्रिज कह लो, पुल कह लो। पुल की की खासियत हुंदी है, जिहड़ा नहर दे उत्ते पुल जिहा बनिया हुंदा वो एक थां एक पास्यों दूजे पासे जाण दा रस्ता हुंदा। जे आपां पुल नूं तोड़ दईए, पुल नूं हटा दईए, फिर दोने किनारे आपस दे विच डिसकनैक्टड हो जाएंगे, आपां एक पास्यों दूजे पासे नहीं जा सकते। सो कट वर्टेक्स का मतलब की है, ए वर्टेक्स इज कॉल्ड ए कट वर्टेक्स फॉर इफ G माइनस V इज डिसकनैक्टड। कि आपां उस वर्टेक्स नूं कट वर्टेक्स कहांगे जिन्हों डिलीट करन तो बाद ग्राफ टुट जाता है, दो अलग अलग हिस्से हो जाते हैं, उस वर्टेक्स नूं की बोलांगे कट वर्टेक्स। एवें एक डेफिनेशन कट एज की आऊगी। कट एज की डेफिनेशन की होगी, वो एज जिन्हों डिलीट करन तो बाद ग्राफ डिसकनैक्टड हो जाता, वो ग्राफ उस एज नूं की बोलिया जाऊगा कट एज। बस जिन्हों डिलीट करन तो बाद ग्राफ टुट गया वो कट है।
जे वर्टेक्स है तो कट वर्टेक्स, जे एज है तो कट एज। हुण जिवें आ ग्राफ है, इस ग्राफ दे विचों आपां ने जी माइनस ए पता करना, तो जी माइनस ए की चीज़ है, आ ए वर्टेक्स सी, तुसीं इहनूं डिलीट कर दो, ਇਹਦੇ ਨਾਲ जुड़िया है एक आ एज डिलीट हो जू, एक आ एज डिलीट हो जू, इत्थे सीगा आ वाला ते आ वाला डिलीट करता, ये किहड़ा ग्राफ बन गया जी माइनस ए। आ सीगा जी माइनस बी, तो जी माइनस बी जदों तैयार करांगे आ वर्टेक्स सीगा बी, तो ये नाल जुड़े हुए 1 2 ते 3 एज डिलीट कर देंगे, 1 2 ते 3 एज डिलीट करते। उस तो बाद आ गया जी माइनस सी, आ वाला हो गया जी माइनस सी, आ वाला जोड़ा सी वर्टेक्स आ ये डिलीट करांगे, 1 2 ते 3, आ वाला 1 2 ते 3 एज ये डिलीट करते। सो किसी ग्राफ दे विचों जे वर्टेक्स डिलीट करन नूं कहा जा रहा, तो सीधा सीधा उस वर्टेक्स नूं भी डिलीट करना, उहदे नाल जुड़े हुए एजेस नूं भी डिलीट करना है। उस तो बाद आ गया जी माइनस ई, जी माइनस ई मैं तुहानूं दस ही गया पहला कि किसी ग्राफ दे विचों किसी एज नूं डिलीट करना। हुण आ देखो इत्थे की कहा गया जी माइनस ए बी, आपां ए बी वर्टेक्स नूं डिलीट कर एज नूं, सॉरी एज नूं, आ ए बी एज नूं डिलीट कर दिंदे आ, तां आ ए बी नूं डिलीट करके इदां दा बन गया। इहदा मतलब की हो गया, आ जिहड़ा ए बी एज आ ये एक तरह का कट एज आ, पुल है, ए तो इधर जाने का रस्ता सी जिहड़ा तुसीं विच वाला रस्ता ही डिलीट करता, तो यह पुल है, एक तरह का ब्रिज आ जां यह कट एज है। दूजे नंबर पर बी सी डिलीट करने को कहा गया, आ सीगा बी सी, आपां बी सी नूं डिलीट कर दिए, ग्राफ के दो हिस्से तो नहीं होए, तो बी सी की आ नॉट ए कट एज। तीजा की आ गया जी माइनस बी डी, हुण आ बी डी नूं डिलीट कर दिंदे आ, तां जेड जी बच गई, कोई इशू नहीं, जी माइनस बी डी हो गया। ग्राफ हले भी इको ही है, दो ग्राफ तो बने नहीं, टुटिया तो है ही नहीं, तो यह भी कट एज नहीं है। चौथे नंबर पर की आ गया जी माइनस सी डी, जे आप सी डी नूं डिलीट करते हैं तो कोई इशू नहीं, ग्राफ हले भी जुड़े ही रहिंदा है। बाई चांस वो पूछ सकता इहदे किहड़े-किहड़े कट एज ने, इस ग्राफ के किहड़े-किहड़े कट एज ने, सिर्फ आ पहला सीगा ए बी, क्योंकि ए बी नूं डिलीट करने तो बाद ग्राफ टुट गया सीगा। उस तो बाद छोटी जी एग्जाम्पल आ किहड़े-किहड़े आपस दे विच आइसोमॉर्फिक ने, ये सारे तुसीं दसणे आ। जिवें हुण मैं कंपेयर करदा डी अते जी नूं, पहली गल तां 1 2 3 4 5 वर्टेक्स ने, 1 2 3 4 5 वर्टेक्स ने, एज किन्ने ने 1 2 3 4, इहदे च किन्ने ने 1 2 3 4, 4 ही एज ने। इहदे 1 डिग्री वाले किन्ने ने 1 2 3 4, इहदे 1 डिग्री वाले किन्ने ने 1 2 3 4, इहदी डिग्री कितनी है 1 2 3 4, इहदी डिग्री कितनी है 1 2 3 4, तां मेरा डी ग्राफ अते जी ग्राफ आपस दे विच आइसोमॉर्फिक हो गए। ऑपरेशन ऑन ग्राफ्स, यूनियन ऑफ टू ग्राफ्स, दो ग्राफ्स की यूनियन करनी है। यूनियन का मतलब होंदा इकट्ठा करना, इधरले बैग दी आइटम इधरले बैग दी आइटम कढ़ के रलातियां मिक्स करतियां अपने इकट्ठे करतियां तो यूनियन हो जाती है। हुण दो ग्राफ्स की यूनियन करनी है, एक आ ग्राफ आ एक आ ग्राफ आ, यूनियन वेले जिहड़ी चीज़ रिपीट करती है वो एक बार लिखी जाती है, एक तो वध बार नहीं लिखी जाती होंदी। तो इत्थे आ V1 आ, इत्थे आ V1 आ, इनू इक्को बारी लिखा जाऊगा, इत्थे बनाता आ की आ गया G1 यूनियन G2, दोने ग्राफ्स की आपां यूनियन करती। जे इंटरसैक्शन करनी आ, इंटरसैक्शन दे विच की आ जाऊगा, दोनों ग्राफ्स की इंटरसैक्शन, इंटरसैक्शन की है सिर्फ कॉमन पार्ट, सिर्फ कॉमन पार्ट दे विच जे आपां G1 इंटरसैक्शन G2 लिखीए तो कल्ला कॉमन वर्टेक्स V1 आउंदा, क्योंकि इहदे विच इहो जिहे एज ने इहदे च है ही नहीं, इहदे च लूप है इहदे च लूप है नहीं, दोनों का कॉमन पोर्शन की आ कल्ला आ वाला वर्टेक्स आ V1, V1 तो आपां V1 ड्रॉ करता। सो दो ग्राफ्स की यूनियन किवें करदे आ, इंटरसैक्शन किवें करदे आ, ये तुहानूं दस्सिया गया हुणे। आ इंटरसैक्शन हो गया, देखो इंटरसैक्शन च कल्ला एक वर्टेक्स ही लगाता। आ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स ने, इस एक्सरसाइज नूं तुसीं ईजीली कर सकते हो, कोई खास औखा काम है नहीं गा। वाक, पाथ अते सर्कट पहला तो नहीं करे आपां ने,
नहीं, वाक पाथ ते सर्कट। वाक का मतलब होंदा तुरना, तुर के जाना। आपां रस्ते दे विच जिहड़े जिहड़े एज आ रहे ने वो भी लिखांगे, जिहड़े जिहड़े वर्टेक्स आ रहे ने वो भी लिखांगे। जिवें मान लो V0 तो चले E1 ते पहुंच गए एज ते, E1 तो बाद V1 ते आ गए, V1 तो बाद E2 ते आ गए, तां रस्ते दे विच जिहड़े जिहड़े एज आ रहे ने वो भी लिखी चलो, जिहड़े जिहड़े वर्टेक्स आ रहे ने वो भी लिखी चलो। जे वाक दा शुरुआत अते एंड वाला वर्टेक्स वखरा वखरा तां ओपन पाथ बनूगा। जे वाक दा शुरुआत वाला वर्टेक्स अते एंड वाला वर्टेक्स इक्को ही जगह ते आके मैच कर गए, इकट्ठे हो गए, तां एक क्लोज्ड वाक बन जाऊगा, सर्कट जिहा बन जाऊगा। पाथ का मतलब की हो गया, कल्ले वर्टेक्स लिखने, एजेस नहीं लिखने। पाथ का मतलब आप रस्ता समझाना भी इत्थों धूरी चला जा, धूरी तो संगरूर चला जा, संगरूर तो पटियाले चल जी, आप जस्ट दस रहे हैं, आप नहीं तुर के जाते। जो आप खुद तुर के जावांगे तो नाल एजेस भी लिखांगे भी आह रस्ते ते जा रहे हैं जी, हुण आह पिंड वाला रस्ता आ गया, आह रोड आ गई, वो वाक च आऊगा। जो आप कल्ले पाथ कल्ले वर्टेक्स लिखांगे उदों की आऊगा, पाथ। सर्कट का मैं तुहानूं दस ही दिता कि जे शुरुआत ते एंड वाला वर्टेक्स वखरा वखरा है तो ओपन है, जे शुरुआत ते एंड वाला सेम कर गया तो सर्कट बन जाऊगा, क्लोज्ड बन जाऊगा। आ छोटी जी एग्जांपल आ गई, दसो किहड़े किहड़े पाथ हैगे ने, किहड़े किहड़े नहीं हैगे, वैदर और नॉट पाथ। हुण जिवें आ सी ए तो एक्स ते चले गए, ए तो एक्स ते आ गए, एक्स तो बी ते चले गए, एक्स तो बी ते चले गए, फिर बी तो बाद सीधा जंप कर गया सी ते, बी तो सी ते जाने का रस्ता ही नहीं हैगा, तो पहला पाथ नहीं हैगा। दूजा ए तो एक्स, एक्स तो वाई, ए तो एक्स, एक्स तो वाई, वाई तो जेड, वाई तो जेड, आ भी नहीं पाथ हैगा, क्योंकि वाई तो जेड तक जाने का रस्ता ही नहीं हैगा अपने को, सो ये भी पाथ नहीं बनेगा। तीजा एक्स तो बी, एक्स तो बी, बी तो वाई, बी तो वाई, वाई तो सी, वाई तो सी, यस, एक्स तो बी तो वाई, वाई तो सी, ये की है पाथ हैगा। इस तरीके नाल तुसीं चैक करना किहड़े किहड़े पाथ हैगे ने, किहड़े किहड़े नहीं हैगे, सिंपल जी एग्जांपल है। जे तुसीं डेफिनेशन ध्यान नाल पढ़ोगे, डेफिनेशन समझोगे, तो तुहाडीआं सारियां एग्जांपल्स, सारियां प्रॉब्लम्स सही सॉल्व होणगीਆਂ। खास तौर पर डिस्क्रीट दे विच जिहड़ी बुक तुसीं शुरू की हुई है, या खास तौर पर इस चैप्टर दे विच डेफिनेशन वर्क जिन्हों आउंदा आ उहदे लई चैप्टर कुछ भी नहीं हैगा, थ्योरम्स कुछ भी नहीं हैगियां। जे डेफिनेशन नहीं आउंदियां फिर सारा कुछ ही बहुत औखा है। अभी ये एग्जाम्पल आ पाथ साइकिल वगैरह शो करना आपने। लेंथ ऑफ पाथ, इत्थे एक डेफिनेशन आ गई, लेंथ ऑफ पाथ, द नंबर ऑफ एजेस अपीयरिंग इन द सीक्वेंस ऑफ द पाथ इज कॉल्ड लेंथ ऑफ पाथ। किसी पाथ की लेंथ का मतलब की है, उस पाथ दे विच आउण वाले एजेस की गिणती, काउंटिंग, किन्ने एज आ रहे हैं, वो काउंटिंग, वो लेंथ बन जूगी पाथ की। आ कुछ रिमार्क दिते हुए ने, एन एज विच इज नॉट ए सैल्फ लूप इज कॉल्ड पाथ ऑफ लेंथ 1। लूप तो बिना जिहड़ा भी पाथ आ उहदी लेंथ कितनी है, 1 है। ए सैल्फ लूप कैन बी इनकलूडड इन ए वाक बट नॉट इन पाथ। जिहड़ा सैल्फ लूप हुंदा वो वाक च इनकलूड हो सकता बट पाथ च नहीं हो सकता, क्योंकि पाथ दे विच तां आपां वर्टेक्स लिखना, उसे वर्टेक्स ते खड़े हैं, उहदे तो दोबारा उसे ते तां जा ही नहीं सकते, आपां उसे ते तां पहुंचे हुए हैं। ठीक है, सो जिहड़ा लूप है ये कहना वाक च इनकलूड हो सकता बट पाथ च नहीं इनकलूड हो सकता। जिहड़े भी चैप्टर दे इत्थे रिमार्क या नोट्स लिखे होण उन्हां नूं ध्यान नाल पढ़ लेना। ये रिमार्क या नोट पूरे उपरली चीज़ का निचोड़ हुंदे आ, काफ़ी चीज़ां इहदे विचों क्लीयर हुंदियां ने। तीजे नंबर ते की कह गया, द टर्मिनस वर्टेक्स ऑफ द पाथ ऑफ डिग्री 1 एंड द इंटरनल वर्टिसेस ऑफ द वाक आर डिग्री 2। जिहड़े एंड वाले वर्टेक्स ने उन्हां दी डिग्री 1 होगी, क्योंकि शुरुआत वाले तो आपां तुरदे हां, एंड वाले ते जस्ट कल्ला पहुंचते हैं, वो तो अगे तो जाते नहीं। तो शुरुआत ते एंड वाले ते डिग्री 1 है, रस्ते दे विच आउण वालियां दी डिग्री 2-2 आ, क्योंकि एक बारी एंटर किया, एक बारी आउट किया, तो बाकी सारियां दी डिग्री कितनी होगी, 2-2। सिर्फ शुरुआत ते एंड वाले, टर्मिनस का मतलब हो गया शुरुआत ते एंड वाला, इन्हां दी डिग्री होगी 2-2। सर्कट, सर्कट के बारे की कहा गया, ए सर्कट इज ए क्लोज्ड वाक इन विच नो वर्टेक्स अपीयर मोर देन वंस। सर्कट की है जिहदे विच कोई भी वर्टेक्स दोबारा नहीं आउंदा, अते यह क्लोज्ड डायग्राम जी आ भी सर्कट है,
आ भी सर्किट है, आ भी सर्किट है। ये सारे सर्किट दी एग्जाम्पल्स ने। हुण इत्थे रिमार्क दिता गया के साइकिल विद के एजेस इज कॉल्ड के साइकिल, जिहदे विच के नंबर ऑफ एजेस आउंदे आ, उहदी लेंथ कितनी है, के आ। सैल्फ लूप आल्सो सर्किट बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। सैल्फ लूप सर्किट हुंदा पर हरेक सर्किट है जिहड़ा सैल्फ लूप नहीं हुंदा। द डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स इन सर्किट इज 2। हुण सर्किट दे विच हरेक दी डिग्री 2 होगी, क्योंकि सर्किट दे विचों सारियां दे विचों दी पास करके अगे अगे लंघी जांदे आ। एक बारी एंटर करदे, एक बारी आउट करदे आ। वन साइकिल इज लूप, लूप की डिग्री 1 होंदी है। टू साइकिल इज पेयर ऑफ पैरेलल एजेस। थ्री साइकिल इज ए ट्रायंगल अप टू सो ऑन। आ काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जी आ गई, कन्फ्यूज कर दिया ने ज्यादातर बच्चों को। कनैक्टिविटी, कनैक्टिविटी का मतलब की हो गया, अनडायरैक्टेड ग्राफ जिहदे विच आपां हरेक वर्टेक्स तो एक वर्टेक्स तो दूजे ते जा सकते हैं। कनैक्टेड ग्राफ की है कि एक कॉर्नर ते खड़े होकर आपां किसी भी पॉइंट ते जा सकीए, तां कनैक्टेड आ, रस्ते जुड़े हुए ने। स्ट्रोंगली कनैक्टेड का मतलब होंदा भी जाण दा भी रस्ता है, वापस आउण दा भी रस्ता है, स्ट्रोंगली कनैक्टेड। यूनीलेटरली कनैक्टेड मतलब एक तरफा रस्ता आ, या जाण वाला आ या कल्ले वापस आउण वाला आ। वीकली कनैक्टेड, ए डायरैक्टेड ग्राफ इज कॉल्ड वीकली कनैक्टेड इफ इट्स अनडायरैक्टेड ग्राफ इज कनैक्टेड। वीकली डायरैक्टेड का मतलब की कमजोर डायरैक्टेड आ, जे आप डायरैक्शनस लावांगे फिर नहीं कनैक्टेड हैगा, जे डायरैक्शनस हटातियां फिर कनैक्टेड है। कनैक्टेड ग्राफ, कनैक्टेड ग्राफ की डेफिनेशन पहला दस गए आप, जिहदे विच हरेक वर्टेक्स तो दूजे ते जाया जा सकता हो। डिसकनैक्टेड ग्राफ जदों ग्राफ के दो अलग अलग हिस्से पे होण, एक हिस्से तो दूजे हिस्से तक जाण दा रस्ता ना होवे, उहनूं आपां डिसकनैक्टेड ग्राफ कहांगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ देखो की है, जिवें हुण आ सी कल्ली तीजी डायग्राम कनैक्टेड है, आ पहली डायग्राम कनैक्टेड नहीं हैगी, क्योंकि इस वर्टेक्स तो इधर इधर का जाया जा सकता, पर इस वर्टेक्स तो इत्थे नहीं पहुंचा जा सकता। एवें इहदे विच आ दो वर्टेक्स के विचकार जाण दा कोई रस्ता ही नहीं हैगा, ये तो इधर जाने इत्थे जाने जां इत्थे घूमी जाने आपां, इहदे तो इधर जाने इधर जाने जां एवें घूमी जा रहे हैं, इस वर्टेक्स तो इस वर्टेक्स तक पहुंचने का कोई रस्ता ही नहीं हैगा, तो यह ग्राफ कनैक्टेड नहीं हैगा। आ तीजा ग्राफ कनैक्टेड हैगा, इहदे किसी भी वर्टेक्स तो इधर उधर घूमिया जा सकता, ये कनैक्टेड। ओनली 3 इज कनैक्टेड। ग्राफ वैसे सारे हैगे ने, ग्राफ तो सारे ही ने। मैट्रिक्स रिप्रजेंटेशन ऑफ ग्राफ, दो तरीकों नाल आपां ग्राफ की मैट्रिक्स बना सकते हैं। एक मैट्रिक्स आऊगी एडजेसेंसी मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स आऊगी इंसीडेंस मैट्रिक्स। पहला मैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स बारे दसदा। जिवें इहदी एडजेसेंसी मैट्रिक्स लिखनी आ तां इहदे रो वाइज इधर नूं भी वर्टेक्स लिख लो, इधर नूं भी वर्टेक्स लिख लो। इहदे किन्ने वर्टेक्स ने, 1 2 3 4, तां ए बी सी डी, ए बी सी डी, 4 आपां वर्टेक्स लगाते। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ दो वर्टेक्स ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ एज ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ 1 लिख दो, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ दो वर्टेक्स ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ एज नहीं ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ 0 लिख दो। ਜਿਵੇਂ A ਤੋਂ A तक जा सकते हैं तो 1 आ जाऊगा, A ਤੋਂ B तक जा सकते हैं तो 1 आ जाऊगा, A ਤੋਂ C तक नहीं जा सकते, A ਤੋਂ C तक नहीं जा सकते तो 0, A ਤੋਂ D तक जा सकते हैं तो 1, तो पहली रो आ गई 1 1 0 1 1 1 0 1। हुण उवें B ਤੋਂ A ਤੇ जा सकते हैं तो 1 लिख दो, B तो अपने आप ते नहीं आ सकते तो 0, B तो C ते जा सकते हैं तो 1, B तो D ते भी जा सकते हैं तो 1। हुण C दी वारी आ गई, C तो A ते नहीं जाया जा सकता तो 0, C तो B ते जाया जा सकता तो 1, C तो अपने आप ते नहीं जाया जा सकता तो 0, C तो D ते जाया जा सकता तो 1। हुण D दी वारी आ गई, D तो A ते जाया जा सकता तो 1, D तो B ते जाया जा सकता तो भी 1 आ गया, D तो C ते जाया जा सकता तो भी 1 आ गया, D तो अपने आप ते जाया ही नहीं जा सकता तो 0। आज की चौथी रो गई 1 1 1 0 1 1 0। ये तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स आ। एडजेसेंसी मैट्रिक्स की लिख लेना, रो वाइज भी वर्टेक्स लिखने आ, कॉलम वाइज भी वर्टेक्स लिखने आ, दोनों पासे नूं वर्टेक्स लिख लेने आ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ दो वर्टेक्स ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ एज ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ 1 आ जाऊगा, ਜਿਹੜੇ दो वर्टेक्स ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ एज नहीं ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ 0 आ जाऊगा।
ਇਹ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਜੈਸੈਂਸੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਟੈਕਸ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਐਜਸ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਟੈਕਸ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਰਟੈਕਸ ਕਿੰਨੇ ਆ, A B C D E, ਤਾਂ A B C D E ਇਹਦੇ ਵਰਟੈਕਸ ਹੋ ਗਏ। ਐਜ ਕਿੰਨੇ ਆ ਇਹਦੇ, x7 ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ x1 x2 x3 x4 x5 x6 ਅਤੇ x7। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਰਟੈਕਸ ਆ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੀਚੇ 1, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 0। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਵਰਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਦੂਜਾ ਵਰਟੈਕਸ ਸੀਗਾ B, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਐਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 0। ਤੀਜੇ ਵਰਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ C ਦੀ, ਇਹ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 0, ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਛੇਵੇਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1, ਬਾਕੀ ਸੱਤਵੇਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 0। ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ D ਦੀ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਛੇਵੇਂ ਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 0, ਛੇਵੇਂ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 1। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ E ਦੀ, E ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੱਤਵਾਂ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੇ ਸੱਤਵਾਂ, ਬਾਕੀ ਆ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 0। ਸੋ ਫਰਕ ਕੀ ਆ, ਐਡਜੈਸੈਂਸੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋ ਵਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਲਮ ਵਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਟੈਕਸ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਚ ਰੋ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਵਰਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਾਲਮ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਐਜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆ ਸੀਗੀ ਦੀ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਲਓ ਜੀ, ਆ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ। 2 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮੰਡੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸੁਨਾਮ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈਪਰਟਾਈਟ ਗ੍ਰਾਫ। ਬਾਈਪਰਟਾਈਟ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੰਡੇ। ਆ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ।